Yes, very good evening to everyone. Queries, please. I have nothing to share, nothing to say. Hello, Hans. हेलो, कैन यू हियर मी सर? Yes, yes. सर एक्सिस बैंक में ही क्वेरी था, एक बार मंथली एंड वीकली चार्ट्स खोलोगे प्लीज? It is falling under trade setup, no? यस सर. अभी सर मंथली में रिट्रेस हो गया है एंड वीकली में सपोर्ट से चल रहा है. सो बट सिंस नाउ द जर्नी इज वेरी लॉन्ग, बट 640 का एक रिसेंट हाई है, हाईलाइटेड हाई है इन डेली. टुडे क्लोजेस समवेयर अराउंड 619. I have opened. 80 journey is completed and maximum retracement has occurred. Now, whenever low time frame trade with support after 20th November, is supposed to buy. Yes sir. And, referring to recent high in daily time frame. Yes sir. It's 40. Whenever this recent high comes, no, wait for Yes a sir. day till end of the day. And if it does not manage to trade on higher side, then square off the position. Otherwise, hold it. Not an issue. ओके सर. सो कल अगर आज 619 का क्लोज है, कल if it comes somewhere around 630, we should not scare off and hold till end of day. If it does Yes. not trade, then we scare off. 640, next level is 644. Yes sir. If traded on a higher side, possible, then hold it. Otherwise, hold it. Okay sir. ठीक है, got it sir. Welcome to the web. But we should know to reinitiate on retracement or whenever the 640 trades on higher side. Yes sir. So tomorrow we fold, and whenever again, if in the current week or in the next week it trades above 640 and we are in the same month, then we should initiate, correct? Yes. Okay. Sir, one more query sir. Trade setup page now please. Trade setup page. इसमें तो मंथली टाइम फ्रेम.
इसमें से काउंट में जाके बाइंग एंड ट्रेंडिंग एंड नीचे एटीआर में जाके सपोर्ट कंप्लीटेड. Now, so if we do live opportunity buying ना, अमर आजा बैटरी फर्स्ट वाला ही, it still comes like lower time frame में higher gap है, ICIC plus higher gap. So should we be concerned about that? ATR journey completed. Yes, sir. When completed? On 23rd November. Yes, sir. And Yesterday. It is not retraced. Yes, sir. Yes, sir. Hello. After 23rd November, 10:30, open ICRC higher gap, Yes, retraces, sir. then upper band trades, no? Yes. SRAR, no need to bother. So like you had mentioned in one of the webinars कि अपन higher gap में buying नहीं करेंगे. You are not buying weekly time frame, no? You are buying monthly time frame. Your stop Yes, sir. loss Correct. we are taking clue from low time frame. Okay, sir. So we should not be concerned on higher gap. Okay. Okay, sir. Got it. Okay. Next section, sir. And it is also FRAR, no? It is retraced and then traded the fresh support. It means Sir, it is FRI monthly में retrace होना चाहिए ना sir, और weekly also is fine because monthly में से retrace नहीं. want to respect higher gap also. Read the psychology of this. ICRC open with higher gap. Yes, sir. It is up to 23.6 or 38.2 nearer to BDP. Yes. We are not trading, but we are avoiding to buy because it is likely to correct till BDP. But instead, it is open into ICRC, retraced all the way till RC 14.6, refused to leave RC, and traded with fresh support, and therefore we can ignore. This is the Understood, sir. तो ऐसे से और एक दो script है, तो I'll go and study those also. And yeah, but when you are trading the current time frame, obviously it will not come also in live sir, live opportunity. No need to bother because current time frame all are no gap only, higher gap है ही नहीं. हाँ sir, वो निकल जाता है live opportunity buying से. Go ठीक ahead, है no sir. problem. Bajaj Finance also, while taking clue from low time frame, we can ignore that. ठीक है? Okay, okay sir. ठीक है sir. Thank you sir. Anyone else? हाँ ध्रुविल बोलो. सर आप एक बार ये समझाओ ना रिट्रेसमेंट और लोअर टाइम फ्रेम में बाय करने का. तो सर स्टॉप लॉस का मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बार बताओ ना सर स्टॉप लॉस कैसे रिट्रेसमेंट हुआ तो बाय कैसे करने का, एक बार स्टॉप लॉस कैसे करने का. Say for case studies हम 34 scripts है यहाँ पे. Buying intending 34 scripts. Then go to live opportunity buying, current time frame retracement. Okay. Dhruvil, are you there with हाँ me? सर. Yes sir. Here RMSL higher open. Yes Axis sir. Bank new retracement on 4th November. Okay. Anytime later, Okay. 4th November 10:30 के बाद, whenever low time trades with support, Okay. active support,
or fresh support. Okay. Initiate buying. Okay. If you have bought on active support, Okay. ICFC active support, re-enter into RC, re-begin to buy, we can hold only if upper band is also traded, otherwise we have to square off the position. यहाँ पे तो 7 upper- ग्रीन है, यहाँ दिख ही रहा है कि फ्रेश सपोर्ट है, तो 4 Yes. नवंबर 2020 के बाद ये stop and used to buy in RC above WDP occurred on 6 November Yes, sir. 130. Yes, sir. Buy, that's all, and hold it. But सर आपको तो मैं ओके समझा रहा हूँ, आपको हाँ। अभी वीकली ही करना है. ये सर वीकली में, बट अभी सर अभी स्टॉप लॉस कैसे होगा, वो स्टॉप लॉस को बताओ ना सर. RMSL higher open, lower time frame retraces, and we have bought. Now, which time frame we are trading? लोअर टाइम फ्रेम ना सर. Which time frame we are trading? Lower time frame. मंथली मंथली We have taken the clue from lower time frame weekly. ओके. Which time frame we are trading? Monthly, मंथली. right? So Yes, sir. until monthly is not trading with fresh support, हाँ. we have taken clue from lower time frame. So we will hold with the stop loss of lower time frame. The moment current time frame trades with support, monthly time frame trades with support, since we are trading monthly time frame, Yes, stop sir. loss will be of monthly time frame. Okay. This you should adopt in weekly time frame for first 3 months, 4 months, 6 months. Don't shift to monthly. सर एक बार वीकली में कैन यू सर जस्ट टेल मी कि दिस वुड बी द स्टॉप लॉस ऐसा शो करके जब वीकली भी टाइम. जब भी हम लो टाइम फ्रेम से क्लू लेके बाइंग करते हैं, हाँ सर. तब स्टॉप लॉस जो है फर्स्ट स्टॉप लॉस लो टाइम फ्रेम का ही रहेगा. जैसे करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया तो करंट टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस रहेगा. ओके. Let us see here in weekly time frame. जनरेट नहीं हो रहा. जब तक ये जनरेट होता है मैं फिर से कहता हूँ, हम लो टाइम फ्रेम में से क्लू लेके बाइंग इनिशिएट करते हैं और स्टॉप लॉस भी जो है क्वाइट ऑब्वियस है कि लो टाइम फ्रेम का ही रहेगा. कब तक? जब तक करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से नहीं चले. The moment it trades with support in low time frame, the moment it trades support in current time frame, then we will not look at low time frame. My stop loss will be current time frame only. Buying in trending 48 स्क्रिप्ट. मैं वीकली में हूँ तो कौन सी टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा हूँ? हाँ वीकली वीकली. तो मेरा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? डेली का ना सर. मैं वीकली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा सपोर्ट कौन सा रहेगा? स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? वीकली का. टारगेट कौन सा रहेगा? वीकली का. वीकली का. ओके. हाँ. लेकिन ओके. यस सर. लेकिन जब मैं लो टाइम फ्रेम से क्लू लेके बाइंग करता हूँ, जब तक करंट टाइम फ्रेम वीकली में सपोर्ट नहीं मिले तब तक मेरा स्टॉप लॉस लो टाइम फ्रेम से रहेगा. ओके ओके सर. जैसे करंट टाइम फ्रेम में जैसे ICFC ओके. लेटेस्ट टेक हियर, यहाँ पे सपोर्ट से चल रहा है बैंक हाँ निफ्टी. सर. यस सर. स्टॉप लॉस किसका रहेगा? वीकली का. अपोलो हॉस्पिटल ICRC है, हाँ. मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है. हाँ सर. मतलब कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया कल हाँ. और हमने बाइंग कर लिया. यस सर. और करंट टाइम फ्रेम वीकली में अपर बैंड ट्रेड नहीं किया है, हाँ. फ्रेश सपोर्ट नहीं मिला है, तो मेरा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? डेली टाइम फ्रेम का.
डेली टाइम सर। तो बैंक निफ्टी में अभी सपोर्ट मिला तो सर स्टॉप लॉस का क्या लोअर टाइम फ्रेम में रहेगा तो स्टॉप लॉस का वैल्यू क्या होगा सर? एक बार करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, हाँ वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, हाँ उसके बाद में वीकली का ही सपोर्ट रहेगा। अब 1 मिनट मेरे साथ रहो, यहाँ पे बोलो ओके बैंक निफ्टी में वीकली में सपोर्ट मिला। मिला सर। मेरा टाइम फ्रेम कौन सा है? वीकली। तो वीकली मेरा है सर। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? वीकली रहेगा। वीकली रहेगा। और यहाँ पे यस वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, यस सर। माई स्टॉप लॉस विल बी ऑफ व्हाट? वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम। अपोलो हॉस्पिटल सपोर्ट मिला क्या? सपोर्ट नहीं मिला सर। हाँ, तो अगर समझ लो कि लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल जाता है हाँ और हम बाइंग इनिशिएट करते हैं, यस सर। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ कौन सा रहेगा? लोअर टाइम फ्रेम का सर सब अच्छा, वीकली का उसके लोअर बाद टाइम में फ्रेम। उसके बाद में करंट टाइम फ्रेम वीकली में भी सपोर्ट मिल गया, हाँ तो मेरा तो सर सपोर्ट कौन सा? स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा, करंट टाइम फ्रेम का जो है वो उसमें चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे तो अपोलो हॉस्पिटल में रेजिस्टेंस से चल रहा है, ये लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करता हूँ मैं, वो निकल जाएगी इसकी। यहाँ पे सपोर्ट भाव सब अपडेट हो रहे हैं क्या अभी तक? आईओसी हाँ यस सर। सपोर्ट, मेरा यस स्टॉप सर। लॉस कौन सा रहेगा? वीकली का सर लोअर टाइम फ्रेम। एक ही सेंटेंस में समझो, मैं हाँ वीकली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा हूँ और वीकली टाइम फ्रेम भी सपोर्ट से चल रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वीकली टाइम फ्रेम का। जब तक ओके वीकली टाइम फ्रेम इज नॉट ट्रेडिंग विद सपोर्ट और मैं लो टाइम फ्रेम में क्लू लेके बाइंग कर रहा हूँ, तो माय स्टॉप लॉस विल बी फ्रॉम लो टाइम। ओके ओके सर। ओके Shall I go to someone else? सर। Anyone else? रोमिल, आपका हैंड रेस था, क्या हुआ? रोमिल, हेलो। हाँ सर, सॉरी वो गलती से नीचे हो गया था हाथ। तो आई जस्ट हैड वन क्वेरी कि हम लोग ने ये जो सीखा है कि करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो और फिर उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो वी हैव टू बाय। बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी एक स्टॉक हो, जैसे आप आज का वीकली में बैंक निफ्टी खोल सकते हो प्लीज? हाँ, इसमें ये बैंक निफ्टी में आप जैसे वो प्लान खोलोगे ना तो उसमें टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया है वीकली में, एंड देन उसके बाद फिर मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है। आईसीएफसी ओपन होके आरसी 23.6 अच्छी हो गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ। जर्नी कंप्लीट हुई। नहीं सर, जर्नी कंप्लीट नहीं हुई। एक आईसीएफसी ओपन होकर आरसी 23.6 आना, हम्म। मतलब एक जर्नी कंप्लीट हुई। हाँ यस सर। नाउ सेकंड जर्नी विल बिगिन। सेकंड। ये रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले और करंट टाइम फ्रेम भी अपर बैंड ट्रेड कर लिया, तो सेकंड जर्नी बिगिन हुई। हाँ रिट्रेस होकर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है, हाँ सर। रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट से चला। हाँ सर। इस दो में से एक में भी आइदर करंट टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चलते ही हम इमीडिएटली बाइंग इनिशिएट करेंगे हाँ सर। और उसको हम कहेंगे FRAR, फ्रंट हम्म। रनर आफ्टर रिट्रेस। रिट्रेसमेंट।
and second journey usually target is RC 100% TVLS ओके सर। or even TVHS. थर्ड जर्नी, जहां भी जर्नी कंप्लीट होती है ATR की, जो हम कल समझे, इसके पहले भी समझे कि जहां भी ATR की जर्नी कंप्लीट होती है, उसके बाद रिट्रेस होकर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले और बाद में करंट टाइम फ्रेम में भी जर्नी एक्सटेंड होती है, तो दैट इज नोन एज थर्ड जर्नी। एफ थर्ड जर्नी क्या बोलेंगे उसको? थर्ड जर्नी। यस। यहाँ पे RC 23.6 पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं, ये टारगेट है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, बट इट डजंट मीन कि ये नहीं बढ़ेगा। ये वापस जहां जहां प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, जैसे ICFC ओपन होकर RC 23.6 का प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, री एंट्री इनटू RC और रीबिगिन टू बाय होकर RC 38.2 का प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, अपर बैंड ट्रेड करके RC 100% बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, ATR जर्नी कंप्लीट होती है तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, RC 161.8 ट्रेड कर ले, 261.8 क्लाइंबिंग बाई है, तो ये भी प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। बट हर प्रॉफिट बुकिंग लेवल के बाद मुझे फिर से ट्रेड रीइनिशिएट करना है। कब? जैसे ही रिट्रेस हो और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो इमीडिएटली बाई करनी है, दैट विल हैव अ न्यू राउंड ऑफ बाइंग, न्यू जर्नी बिगिन होगी। और यूजुअली मैक्सिमम there are 3 journeys in every trading plan. जैसे ICFC में ओपन हुआ तो फर्स्ट जर्नी RC 23.6 से RC 38.2 तक, सेकंड जर्नी रिट्रेस होकर अपर बैंड ट्रेड करे RC 100% तक, थर्ड जर्नी ATR जर्नी कंप्लीट होकर रिट्रेस होकर जब एक्सटेंड करता है ATR जर्नी तो थर्ड जर्नी। गॉट इट सर। ठीक है, ठीक है। और ये तीनों जर्नी को हमको रिकॉग्नाइज करना होगा। जैसे मैं इतने समय आराम से समझा रहा हूँ, इसको फर्स्ट जर्नी, इसको सेकंड जर्नी, इसको थर्ड जर्नी, जब भी हम बोलेंगे ना ये फर्स्ट जर्नी है, ये सेकंड जर्नी है, ये थर्ड जर्नी है, तो होगा यूं कि प्रॉफिट बुक करने के बाद में भी अगर और उसको बढ़ना है या और उसको टूटना है तो हमको रीइनिशिएट करना है, उसको छोड़ना नहीं है। समझ रहे हो? हाँ समझ गया सर। इन शॉर्ट ये बात लिख लो, शायद साल भर बाद समझ में आएगी। What matters is not entry and exit. What matters is reinitiation. और जो एक्टिव ट्रेडिंग में रीइनिशिएट करना सीख गया, और जब भी पोजिशनल ट्रेडिंग में आएगा, पैसिव ट्रेडिंग में आएगा, तो बहुत बार प्रॉफिट में, बहुत बार लॉस में, किसी न किसी रीजन से प्रॉफिट बुक हो जाता है, किसी न किसी रीजन से लॉस बुक हो जाता है। तो एग्जिट जो है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रॉफिट में या लॉस में पोजीशन एग्जिट करने के बाद में रियल ट्रेडिंग सिस्टम वही होती है जो रीइनिशिएशन लेवल दे, और रियल ट्रेडर भी वही होता है, रियल इन्वेस्टर भी वही होता है जो प्रॉफिट में या लॉस में पोजीशन बुक करने के बाद उसको वापस कहाँ पे बाइंग का मार्केट है तो कहाँ बाइंग के लिए रीइनिशिएट करे, कहाँ सेलिंग के लिए रीइनिशिएट करे, दैट मैटर्स अ लॉट।
not entry, not exit. What matters is reinitiation. और ये Yes, एक्टिव ट्रेडिंग करके इतना कुछ टेम्परामेंट बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, तो उसमें से एक टेम्परामेंट ये भी है. वन इज रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट. सेकंड इज रीइनिशिएशन, रीइनिशिएशन, रीइनिशिएशन. ये हमको एक्टिव ट्रेडिंग करते करते 3, 4, 6 महीने में ये दो बात के ऊपर हमको मास्टरी लेनी है. और जो रिट्रेसमेंट परख ले, रिकॉग्नाइज कर ले, और जो रीइनिशिएट करना सीख जाए, ये दो क्वालिटी जिसमें आ गई, उसके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के, पैसिव ट्रेडिंग के, इन्वेस्टर्स के दरवाजा खुल गए. Doors are opening only for those, and doors and positional trading and passive trading जो है, it welcomes only those. I'm not talking about Shiksha or Himanshu Shah. Only those should prefer positional trading and passive trading who knows to give respect to retracement, and one who knows to reinitiate. और मैं ट्रेडर का टेम्परामेंट यही बनाता हूँ, क्योंकि हम ट्रेडर क्या होते हैं, जहां कुछ थोड़ा थोड़ा मिला लेके भाग गए. नहीं, ऐसा नहीं करना है. जब तक वीक खत्म नहीं हुआ, जब तक वो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आ रहा है, लगातार लास्ट डे भी, फ्राइडे भी अपॉर्चुनिटी है ना मिलती है. मंथ एंड है तो मंथ एंड में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. अगर वीकली प्लान को हम मंडे टू फ्राइडे अगर हम ट्रैक न कर सके, सॉरी, लेट मी यूज दिस वर्ड्स, वीकली प्लान करके हम मंडे टू फ्राइडे उस प्लान को हम ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं लगातार, कंसिस्टेंटली, वीकेंड. मंथली प्लान को हम देख रहे हैं, तो मंथली प्लान को हम ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. कम से कम 1 महीने के लिए उस प्लान को हम पकड़ के रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो ही हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, पैसिव ट्रेडिंग के लिए फिट है. ये एक्टिव शिक्षा जो है वो बहुत कुछ सिखा देती है. पोजिशनल और पैसिव का जो टेम्परामेंट है वो यही बन जाता है. दैट इज वाई एक्टिव शिक्षा फर्स्ट. कौन सी 3 बात की हमने, ध्रुविल? सर हम लोग ने पोजिशनल शिक्षा की बात की कि अगर रीइनिशिएशन और रिट्रेसमेंट आ जाए एक ही प्लान को हम लोग को पकड़ के, हम लोग पूरे हफ्ते तक, पूरे महीने तक, इफ वी कैन रीइनिशिएट इन दैट, देन हम लोग को पोजिशनल आ जाएगा. पोजिशनल तो सबको आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है. एक्चुअली पोजिशनल शिक्षा, पैसिव शिक्षा, लर्निंग इज मोर इजियर देन एक्टिव शिक्षा. What matters is The temperament. the temperament of waiting for the retracement and art of reinitiation and holding. जैसे ये वीकली में, एक वीक में उस प्लान को पकड़ना आ गया, मंथली में उस प्लान को पकड़ना आ गया 1 महीने तक, तो जब तक वो स्क्रिप्ट में बाइंग है, पोजिशनल और पैसिव में आएंगे, तो भले ही प्रॉफिट बुक करते रहेंगे जहां जहां इच्छा होगी. कभी सिक्सम में प्रॉफिट बुक करने का बाद आएगा, कभी मुझे इच्छा हो गई और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया. सब कुछ अलाउड है, कर लो, लेकिन उस स्क्रिप्ट को छोड़ना नहीं है जब तक वहां पे बाइंग है. और सेलिंग है तो उस स्क्रिप्ट को छोड़ना नहीं है जब तक उसमें सेलिंग है. दैट इज कॉल्ड पोजिशनल एंड पैसिव. लेकिन हम एक वीक में मंडे टू फ्राइडे उसमें 3 जर्नी के लिए भी हम प्लान को देख नहीं सकते हैं. या मंथली में कर रहा हूँ तो पूरा महीना उसको मैं ट्रैक और ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं पोजिशनल और पैसिव के लिए फिट नहीं हूँ. इन अदर वर्ड्स, मैं रिट्रेसमेंट की वेट करके ट्रेड लेता हूँ. आई विल कंप्लीट विद दिस. कौन पोजिशनल शिक्षा के लिए, पैसिव शिक्षा के लिए फिट है, मैं एक्चुअली तुमको होल्ड करा के बाकी सबको मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि पोजिशनल शिक्षा, पैसिव शिक्षा में खूब सारे ट्रेड दिए हुए हैं. RAR में 3 ट्रेड दिए हैं, गुडबो सीरीज जस्टिफाइड, गुडबो सीरीज इनएक्टिव, गुडबो सीरीज रीएक्टिव.
और रिवर्सल बाय में बाय सेल में 4 ट्रेड दिए हुए हैं. बाय ऑन रिट्रेसमेंट 1 and 2, तब स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन या रिवर्सल बाय अकर होता है तभी. 2, तीसरा ट्रेड जब पीसीएस के पास बाइंग अकरेंस के बाद मिलता है तो वो इस तरह से 3 से 4 ट्रेड रिवर्सल बाय सेल में है. और पीसीएस पीसीआर में पोस्ट क्लोजिंग टोन में 6 से 7 ट्रेड बहुत जल्दी आ रहे हैं. बट वो उन्हीं को सीखना चाहिए जिसने टेम्परामेंट बना लिया हो रिट्रेसमेंट का, वेट करने का, रिट्रेसमेंट को रिकॉग्नाइज करने का. सेकंड टेम्परामेंट ये बना हो रीइनिशिएट करने का, चाहे प्रॉफिट में बुक किया हो या लॉस में बुक किया हो. तीसरा टेम्परामेंट, मैंने एक बार वीकली टाइम फ्रेम में कोई स्क्रिप्ट में ट्रेड इनिशिएट कर लिया तो फ्राइडे तक मैं उसको ट्रैक करता रहूंगा. सेकंड बात और थर्ड बात एक ही है, रीइनिशिएशन. ट्रैक करना है किसके लिए? रीइनिशिएशन के लिए. मंथली प्लान अगर मैं कर रहा हूँ तो पूरा महीना में उसको पकड़ के रखूं. ये टेम्परामेंट अगर मेरे में आ गया तो फिर जहां भी कोई स्क्रिप्ट में बाइंग में आ गई, कोई स्क्रिप्ट पोजिशनल ट्रेडिंग में, पैसिव शिक्षा में, तो बार बार प्रॉफिट बुक करने के बाद भी, लॉस बुक करने के बाद में भी फिर से उसमें अगर बाइंग का जजमेंट इंटैक्ट है तो मुझे फिर उसको रीइनिशिएट करना है. जब तक वो स्क्रिप्ट बुल के घर में से बैर के घर में नहीं जाती है, तब तक वो एडवांसिंग में से डिक्लाइनिंग में नहीं जाती है. एंड वो वी डोंट नो, वो 3 महीने तक भी एडवांसिंग के घर में पड़ी रह सकती है, 6 महीना भी पड़ी रह सकती है और 6 साल भी पड़ी रह सकती है. बट वी आर नॉट सपोज टू शिफ्ट फ्रॉम दैट स्क्रिप्ट until it is not shifting from advancing to declining. इसी को बोलते हैं पैसिव ट्रेडिंग. और किसी के दिमाग में ये हो कि पैसिव ट्रेडिंग टफ है, सीखना टफ है, तो मैं कहूंगा कि पैसिव ट्रेडिंग कंपेयर टू एक्टिव ट्रेडिंग सीखना बहुत इजी है. बहुत इजी मतलब बहुत इजी है. हाँ, अडोप्ट करना डिफिकल्ट है. और अडोप्ट, ये 2-3 बात जो मैंने अभी कही मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा तो मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट है कि पूरी रात रिपीट करूंगा मैं. लेकिन ये 2-3 बात के लिए अगर अपना टेम्परामेंट हमारा बन गया, दैट अलोन मैटर्स पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए. और हाँ, बाकी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए. फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी सब में है, लेकिन कैपिटल मार्केट में आते हैं तो कुछ तो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे ना, तो हम पोजिशनल ट्रेडिंग का, पैसिव ट्रेडिंग का बेनिफिट ले पाएंगे. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस. ध्रुवील, रिपीट करोगे मैंने क्या समझाया? हाँ सर. सो बेसिकली सर आपने कहा कि पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना बहुत इजी है, बट उसके लिए टेम्परामेंट बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है. और उसके लिए हम लोग को मेनली 2 चीज सीखनी है. वन इज कि रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना, और दूसरा द आर्ट ऑफ रीइनिशिएशन. सो एक बार वो सीख गए तो पोजिशनल सीखना फिर उसके लिए टेम्परामेंट बिल्डअप हो जाएगा. यस. तो गाते रहो, रिट्रेसमेंट रीइनिशिएशन, रिट्रेसमेंट रीइनिशिएशन, रिट्रेसमेंट रीइनिशिएशन. और जब तक वो बाइंग में है तब तक उससे रिश्ता निभाना है. यस यस और सर. नो? यस सर. सर मेरी और एक क्वेरी थी, वो मैं अभी पूछूं? वॉइस वॉइस. कैन यू हियर मी सर? हेलो. यस यस, बोलो. हाँ, और एक दूसरी क्वेरी थी. कैन यू गो टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लॉग? ये कैसे हो रहा है? मैंने आपको म्यूट कर दिया फिर भी हम बात कर पा रहे हैं. यहाँ पे म्यूट आ रहा है. ठीक है, नहीं, अच्छी बात. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लॉग. क्या पूछा ध्रुवील?
हाँ सर, कैन यू प्लीज गो टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लॉग वॉइस डेली? ब्रेक हो रहा है। कैन यू हियर मी? यस यस, सपोर्ट रेजिस्टेंस में आ गया मैं। उसमें डेली लाइव ग्रेटर देन WDP। बोलो क्या करूं? लाइव ग्रेटर देन WDP। अभी नहीं आएगा, जो ड्यूरिंग द डे आता है। अच्छा ओके, ये क्योंकि शाम को मैंने इट विल नॉट कम। हाँ बोलो ना, कौन सी स्क्रिप्ट मैंने है? कल कल उसमें ग्लेनमार्क देखा था, तो उसके आप रिकॉर्ड शीट में जा सकते हो, डेली वाली वॉइस रिकॉर्ड ब्रेक शीट। हो रहा है यार। आप है ना, हेलो। वेबिनार हाँ रीजॉइन करो। यू लीव द वेबिनार एंड रीजॉइन द वेबिनार। ओके सर, आई रीजॉइन इट। मैं आपको यहाँ से डिसमिस करता हूँ, आप वापस रीजॉइन करो। ओके सर। एनीवन एल्स? नो वन एल्स? सर आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग रेडी है, हो गया है, 2-4 दिन में दे दूंगा। थैंक यू सर, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन WDP और ये इसी में है कि सर मेरे को ना अभी भी फॉल्स वाला समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉल्स है कौन सा सही है। WDP कौन कब इनिशिएट करे? जैसे जब लाइव वाले में आता है, अरे यार कुछ प्रॉब्लम है यार, कुछ ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। What could be the reason? The net. हाँ आप बोलो सर। सर सुनाई दे रहा है? हेलो यस यस। सर, बोलते मेरा जाओ। क्वेश्चन यही, जब हम लोग WDP और ये लाइव देखते हैं या VDP लाइव देखते हैं, उसमें कई जैसे एक अगर आप लाइव नहीं भी लगाओ तो एक VDP में कल एक आया था HUL का सेलिंग में, लेकिन वो फिर आज बाई में आ गया। ऐसे में बहुत बार मैं स्क्रिप्ट में फंसता हूँ कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि वे सर आई डोंट सर नो आप मुझे फुल फोन करो नेटवर्क। ना, ब्रेक हो रहा है। सर यू कॉल मी, यहाँ पे वॉइस ब्रेक हो रहा है। कॉल मी नाउ ओवर द फोन, बात करते हैं। कॉल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। कुछ मैसेज भी है, क्वेरी है। ठीक है, एक UBL किसी का मैसेज है कि भाई। हाँ सर बोलो। बोलो, सुन रहा हूँ। हम्म। एक सेकंड, आराम से आराम से। ट्रेड सेटअप कौन सा है? लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग हो गया, उसके बाद में ट्रेड सेटअप कौन सा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी में से जो ग्रेटर देन लेस देन BDP WDP आता है वो। बोलो उसमें क्या क्वेरी है? कोई एक स्क्रिप्ट लेते हैं, बोलो स्क्रिप्ट, बोलो स्क्रिप्ट का नाम। HUL में आता हूँ मैं।
बोलो क्या था एक्चुअल में? कल ये सेल में था, कौन से भाव में? हाँ, स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी है। नहीं, देखो, नहीं ऐसा नहीं है, रुको। फ्यूचर स्टॉक्स आपको सुनाई तो बराबर दे रहा है, तो मैं फोन रख देता हूँ और वेबिनार में बात करता हूँ। देखो, ये जो स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी है और ये अबाउ डब्ल्यूडीपी है, ये दो हमको ड्यूरिंग मार्केट अवर्स करना है, बट करके हाथों हाथ ये पोजिशनल ट्रेडिंग का सेटअप का रास्ता है। तो यहाँ पे हमने किया और इसको हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया। जैसे स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हो तो जितनी भी स्क्रिप्ट आती है, जैसे एक्चुअल आई थी, तो यहाँ पे स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हुआ 20 नवंबर को, स्क्वायर ऑफ किया, ट्रेड इनिशिएट किया, स्क्वायर ऑफ कर दो। 23 नवंबर को वापस स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी दिखा रिपोर्ट में, ट्रेड इनिशिएट किया, स्क्वायर ऑफ कर दो। क्यों? कि जहां से ये स्टॉप एंड टू सेल हुआ है 21546 2152, यहाँ तक वापस एक बार है ना बढ़ के 2152 का नेक्स्ट लेवल है 2163, और एक्चुअली 61.8 का स्टॉप लॉस नहीं होता है, 100% होता है। तो ये वापस एक बार ये 2152 2146 तक बार बार आता रहेगा और वहां पे अच्छी बार्गेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहां पे बेचना चाहिए इसको। कल फिर 2152 का जो नेक्स्ट लेवल है 2175 है। तो इस तरह से जितना ऊपर आता है हमको उसका नेक्स्ट लेवल के स्टॉप लॉस से बेचना है। अगर इसको हम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी स्टडी करें, हालांकि रिवर्सल बाइसेल का टेप आपको नहीं दिया है, बट फिर भी जहाँ ये सेलिंग में चल रहा है, कब से? इस दिन से चल रहा है 23 जुलाई से। तो जब स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हुआ 2268, ये बहुत अकरेंस है, तो हम अभी नहीं करते हैं, बट फिर भी यहाँ पे सेलिंग किया, इसी दिन स्क्वायर ऑफ किया, वापस एक बार देखो 2238 2221 2223, फिर एक बार उछाल आता रहता है, पुल बैक। फिर यहाँ पे स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हुआ, इस दिन बेचा, स्क्वायर ऑफ कर लिया, वापस कहीं ना कहीं एक आईसीआरसी खुल के या आरएमएसएल हायर खुल के 2237 तक आता है, तो वहां बेचो। यहाँ पे फिर स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हुआ 2221 तक आएगा, ये स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हुआ 2227 तक, ये 2221 से 2237 तक ये फिर से एक बार आएगा, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे बेचो। इस तरह से फिर एक स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हुआ, सेलिंग में ही है ये लगातार। 28 अगस्त को तो इसका रेजिस्टेंस था 2188, यहाँ पे बेचा, ले लिया, वापस एक बार वो 2188 आएगा, 2175 2185 2174, तो वहां पे पुल बैक आएगा, वहां पे बेचना है, बेच के रखना नहीं है। ऊपर जब पुल बैक आता है, जैसे यहाँ पे दोनों अकरेंस है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे 2122 में ये स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हुआ था, तो यहाँ पे हमने बेचा, बेच के इसको हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया, फिर वापस री इनिशिएट करना है जब 2122 आता है तभी। यहाँ पे 2122 में हमने इनिशिएट किया हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हुआ 6 अक्टूबर को 2122 का नेक्स्ट लेवल 2130 है, वो अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो ये 2142 स्टॉप लॉस हो गया। तो अब 2142 मेरा स्टॉप लॉस इस तरह से एक्सटेंड होगा, एंड 2142 का 7 अक्टूबर को नेक्स्ट लेवल है 2151, 2142 का नेक्स्ट लेवल 2151, तो यहाँ पे बाउंस बैक आता है जो ट्रेड नहीं किया 7 अक्टूबर को भी। 8 अक्टूबर को 2150 का नेक्स्ट लेवल है, फिर आरएमएसएल हायर ओपन हुआ तो 2167, तो हर भाव में ये सेलिंग ही था। लेकिन इस तरह से अगर इतने सारे
अगर मेरा स्टॉप लॉस का लेवल जो है ऊपर की तरफ एक्सटेंड होते जाता हो तो हमको इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लेवल जो है रेजिस्टेंस लेवल धीरे धीरे नीचे आना चाहिए, देन इट इज प्रॉफिटेबल। और इस तरह से ऊपर ऊपर जा रहा है तो 5% के लिए हम ट्रेड करते हैं, तो इसको एक बार एक्सटेंड हुआ ठीक है, दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार एक्सटेंड होता है तो डाउटफुल है। तो यहाँ पे हमको या तो प्रॉफिट नहीं हुआ या लॉस में हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। फिर ये दोनों है तो ये भी हम दोनों नहीं सीख रहे हैं, ये अबो बीडीपी है, ये दोनों है तो हम नहीं करते हैं। स्टॉप एंड स्पेशल बिलो बीडीपी 3 नवंबर को हुआ, यहाँ पे हमने बेचा, स्क्वायर ऑफ कर लिया, राइट। मैं ये कॉलम हाइड कर देता हूँ ताकि बहुत ज्यादा कॉलम होने से मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमने बेचा, स्क्वायर ऑफ कर लिया, फिर वापस 2106 के पास आएगा और खास करके वहां से आईसीआरसी खुलेगा, एक एक्टिव रेजिस्टेंस देगा, या तो आरएमएसएल हायर खुलेगा और एक स्टॉप एंड यूज टू सेल होगा, या तो एक फ्रेश सपोर्ट देगा और फिर वहां से स्टॉप एंड यूज टू सेल होगा। मतलब कंडीशन 1, लेट पुल बैक कम एंड लेट इट रिवर्स। वहां से एक रेजिस्टेंस से चले तो बेचो, सीधा बेचोगे तो कभी कभार हो सकता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि वहां से रिवर्स होने दो। ये 2147 अबव बीडीपी है, इस 2146 2152 यहाँ तक हम आ गए, तो यहाँ पे जितना बढ़ता है उतना बढ़ने दो। रेजिस्टेंस मिला क्या आज 2136 2138 आके, ये कोई 38 हुआ नहीं, आईसीआरसी 18 रुपए से हुआ तो कंप्यूटर ने गिन लिया, सॉफ्टवेयर है तो कोडिंग में गिन लिया, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मिला नहीं है। आईसीआरसी किसको बोलते हैं, कम से कम आरसी 23.6, टीवीएचएस 38.2 तक आकर फिर अगर वो रेजिस्टेंस से चलता हो या फ्रेश सपोर्ट देके स्टॉप एंड इश्यू सेल होता हो, या तो आरएमएसएल हायर खुल के फिर स्टॉप एंड इश्यू सेल होता हो, मतलब एक रेजिस्टेंस मिलना, यानी कि एक पुल बैक आना और फिर बेचना है। वी कैनॉट, ये इसका तरीका है, कल से इस तरह से इसको ट्रैक करना। ये पोजिशनल ट्रेडिंग का 5% का ट्रेड इसी तरह से ये देता है बाउंस बैक में। और ये भी स्टॉप एंड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी है तो लाइव में लिया, हाथों हाथ लेके स्क्वायर ऑफ कर दो। पोजिशनल का पैसिव का रूल पहला यही है कि अकरेंस में लिया, अकरेंस पीरियड में बाइंग की, अकरेंस पीरियड में सेलिंग की और पोजीशन क्या की, स्क्वायर ऑफ कर दी। और बाद में जो हम रिट्रेसमेंट बोल रहे हैं, वापस एक बार रिट्रेसमेंट आएगा, बाइंग है तो डब्ल्यूटीपी के आसपास या आईसीएफसी खुलेगा या आरएमएसएल लोअर खुले तो भी रिट्रेसमेंट समझ लो। आईसीएफसी खुल के सपोर्ट मिला, रिट्रेसमेंट खत्म। आरएमएसएल लोअर खुल के स्टॉप एंड यूएस टू बाय हुआ, रिट्रेसमेंट खत्म। लोअर बैंड ट्रेड करके डब्ल्यूटीपी तक आया होगा और फिर वहां से स्टॉप एंड यूएस टू बाय हुआ, रिट्रेसमेंट खत्म। इसी तरह से बेचता हूँ तो एक बार बीडीपी तक रिट्रेसमेंट पुल बैक आएगा, फिर वहां से एक रिवर्स होता है तो बेचो, दैट पेस। ये रूल है पोजिशनल शिक्षा का, और रिट्रेसमेंट में ही बेचना है, रिट्रेसमेंट में वापस चलना, दैट इज हाउ इट पेज मोर देन 5%। आई होप आई कुड एक्सप्लेन सर, मेरे को वापस फोन कर लो, तब तक मैं रुद्रा का मैसेज है कुछ, नॉट एबल टू अटेंड, क्या कह रही है। मैंने वो ट्रैकर भेजा, ट्रैकर मुझे याद है रात को 1 बजे बना के मैंने ग्रेटर देन लेस देन बीडीपी डब्ल्यूडीपी का ट्रैकर भेजा है। वो ट्रैकर फिलअप करना चाहिए, और वहां पे ये सब नोट्स दी हुई है, लिखा हुआ है बाय ऑन रिट्रेसमेंट, सेल ऑन रिट्रेसमेंट, लिखा आई वांट टू नो द रीजन व्हाई यूबीएल जुबिलेंट फूड नौकरी वीकली टाइम फ्रेम मंडे ओपनिंग ट्रेड, लेट मी गो टू नौकरी जुबिलेंट फूड, हाउ इट ओपन। तो आईसी जुबिलेंट फूड तो आईसीएफसी ओपन हुआ है,
और ICFC ओपन होके ओपनिंग पीरियड का रूल ये है कि ICFC ओपन हुआ, एक्टिव सपोर्ट मिला, बाय कर लो। किस वैल्यू के ऊपर भी गया 2629 के ऊपर सेम डे 23/11 को, तो उसको होल्ड कर लो। स्टॉप लॉस FC 14.6%। और टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? टारगेट अचीव नहीं हुआ तो यहाँ पे देखो लेडर आई, 12 नवंबर को लेडर आई है। उसके पहले डायरेक्ट पैटर्न ग्रीन कहाँ है? एक फ्रेश सपोर्ट इन RC मिलना चाहिए ना। हम वही जितनी भी बाइंग के ट्रेड्स है हमको ये देखना है कि ICRC ओपन हो। यहाँ पे there is no fresh support in RC, there is no fresh support in RC। तो इस तरह से ये जो जुबिलियंट फूड का ICFC ओपन होके एक्टिव सपोर्ट होके RC 23.6% जो है 2657 तो फर्स्ट 15 मिनट्स में आया होगा, तो कंसिडर नहीं किया फर्स्ट 15 मिनट्स के कारण, बट आया है RC 23.6। तो जरूरी नहीं है तो सेम डे आवे, नेक्स्ट डे भी आ सकता है। बट ये जुबिलियंट फूड जो है, सबसे पहली बात कल के वेबिनार में भी बात की थी कि इट इज जस्ट लेडर है, इसके लिए बाय करना है ऐसा नहीं है। इसके पहले डायरेक्ट ग्रीन भी होनी चाहिए। सिर्फ ये जब तक एक ही कोडिंग है जो बाकी है, बाकी सब 100% फिल्टर हो गया है, तो इसका खाली इतना ध्यान रखो तो बहुत अच्छा होगा। UBL बढ़ेगा वो, लेकिन वो पोजिशनल शिक्षा में बढ़ेगा, एक्टिव शिक्षा में क्विकली बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। बाइंग में जुबिलियंट फूड। UBL क्या लिखा है ये, हाउ इट ओपन। भी ICFC ओपन होके सेम डे टारगेट आना जरूरी नहीं है ना, पूरा वीक भी तो लेता है ना ICFC खुल के एक्टिव सपोर्ट होके। अगर ये ICFC ओपन हुआ, एक्टिव सपोर्ट मिला, हमने बाइंग किया होगा, बट ये किस वैल्यू के ऊपर नहीं गया तो वी कैन नॉट होल्ड द बाइंग, क्योंकि जो भी किस वैल्यू के ऊपर सेम डे नहीं जाता है, जो भी किस वैल्यू को क्रॉस नहीं करता है सेम डे, तो यूजुअली रिट्रेस होता है। अब इसको बाइंग करो, रिट्रेस हो गया, अब लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग करो। हो सकता है वो 1070 तक और रिट्रेस होने दो, जितना मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 1054 तक है होने दो। लेट अस नॉट वेट फॉर द मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले बाई करो। RC 23.6 टारगेट, जरूरी नहीं कि सेम डे आना ना। अगर सेम डे अगर मंडे को ही सब टारगेट आ जाते तो मंडे टू फ्राइडे का मतलब ही नहीं रहता नौकरी। तो फिर वो इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा हो जाएगा। इंट्राडे में करो तो इंट्राडे में टारगेट आएंगे, वीकली में करोगे तो वीकली के टारगेट वीकली में कभी भी आएंगे। नौकरी ICRC ओपन हुआ है, तो ये जो ICRC ओपन होके RC 38.2 हम इसलिए बाय करते हैं मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होने के बाद। यहाँ पे तो 23 तारीख को चलो रिट्रेसमेंट हमको नहीं देखना था, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाय करना था, और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हो और बाइंग किया हो तो जरूरी नहीं कि RMSL हायर ओपन हो, नहीं तो सब स्क्रिप्ट RMSL हायर ही हो जाएगी, ICRC का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। इट इज टू बी बॉट अगेन। ICRC खुला तो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, RMSL हायर हो या ना हो, हमको पोजीशन राइजिंग चैनल में स्क्वायर ऑफ करनी ही करनी है, और अब बाय करो। ICRC खुल के मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया, अब जैसे लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है बाय करो। उल्टा 61.8 का टारगेट नहीं, RC 100% का टारगेट आएगा, RC 100% का टारगेट आएगा लो टाइम फ्रेम सपोर्ट मिलते ही, राइट। दिस इज व्हाट इज है। अगर कोई फिर भी नहीं समझ में आया तो फोन कर लो। सर रिपोर्टेड समरी, ठीक है, ये सी इज अंडरस्टूड, जवाब आ गया। So we are able to listen to the participants and read clearly. बराबर, ठीक है। I think I have answered everyone.
The extracted essence of today's webinar is how to develop the temperament, mental competency to become the positional trader and passive trader. And second extracted essence, this we have learned with the help of Dhruvil. Third, with the help of Sahars, हमने ये सीखा पोजिशनल ट्रेडिंग में ग्रेटर देन लेस देन बीडीपी डब्ल्यूटीपी विच इज बेस्ड ऑन रिवर्सल बाय सेल के ट्रेड है। तो जो भी ट्रेड हम इनिशिएट करते हैं हाथों हाथ उसी दिन स्क्वायर ऑफ करेंगे और वापस रिट्रेसमेंट में मिलता है, रिट्रेसमेंट में बिकता है और उसी समय हम रिट्रेस होके फिर रिवर्स हो तो हम फिर से बाइंग सेलिंग इनिशिएट करेंगे। फिर वो एक बार रिट्रेस होके देन सपोर्ट से चल जाए, रिट्रेस होके फिर बाद में रेजिस्टेंस से चल जाए, फिर बहुत बहुत स्मूथ जर्नी है। 5% नहीं 7% की भी है, अपन 5% ही पकड़ के रखे होता है। ये हमने सर से सीखा। थर्ड हमने सीखा कि भाई ओपनिंग पीरियड के ट्रेड में आईसीआरसी ओपन हो तो जरूरी नहीं है कि आरएमएसएल हायर आवे। हम ये सोच के लेते हैं कि आरएमएसएल हायर आ जाएगा, नहीं तो कम से कम आरसी 38.2 तो आएगा। और ओपनिंग पीरियड में ट्रेड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि नौकरी में मैंने आईसीआरसी में मंडे को कल ट्रेड लिया हो तो मेरी कम से कम ओपनिंग तो हो गई, मैंने ट्रेड तो ले लिया लेकिन मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब मुझे नौकरी को फ्राइडे तक पकड़ के रखना है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इनटू ओपनिंग पीरियड ट्रेड्स। मंडे को ट्रेड लिया, टारगेट आया नहीं आया, बाइंग का जजमेंट तो है ना इंटैक्ट, और टारगेट नहीं आया तो उल्टा अच्छा है, बेटर टारगेट आएगा। मंडे को आता तो 61.8 में निकल जाएंगे, लेकिन अब आएगा तो हम आरसी 100% पे निकलेंगे। जैसे आईसीआरसी भी हो गया, रिट्रेस भी हो गया, अब लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग करो। और रुद्रा से हमने उसकी क्वेरी सॉल्व करके दो बात सीखी। एक, जरूरी नहीं है कि ओपनिंग पीरियड में टारगेट आ जाए। आईसीएफसी खुला तो आरसी 23.6 आना मंडे को ही जरूरी नहीं है। आईसीआरसी ओपन हुआ तो जरूरी नहीं है कि आरसी 61.8 आरएमएसएल हायर मंडे को ही होना। एक बात सीखी हमने ओपनिंग पीरियड की। ओपनिंग पीरियड में हमने दूसरी बात ये कही कि आईसीएफसी खुल के अगर वो किस वैल्यू क्रॉस कर दिया है तो ही हमको होल्ड करना है, जो हमने लिखा हुआ भी है। तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली हटवा देना आरसी 23.6 ओपनिंग पीरियड में आ जाता है, ये भी लिखा हुआ है। फर्स्ट 15 मिनट्स में टारगेट आ जाता है। और ज्यादातर हाँ, प्लीज डोंट फ्रेम दिस। और अगर किस वैल्यू क्रॉस नहीं किया है तो बहुत तो भी हमको पोजीशन इसलिए स्क्वायर ऑफ करनी है कि यूजुअली वो रिट्रेस होता है 38.2 तक, तो हमको फिर वापस नीचे में बाइंग करने के लिए मौका मिलता है। मेन बात ओपनिंग पीरियड का ये है कि ओपनिंग पीरियड में हमने एक बार ट्रेडिंग इनिशिएट कर ली और टारगेट आवे नहीं आवे, बट ओपनिंग पीरियड में पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट ये है, मंडे को में ओपनिंग पीरियड में ट्रेड करने का बेनिफिट ये है कि हमने उस कौन सी स्क्रिप्ट में हमको काम करना है, कौन सी स्क्रिप्ट में हमने खाता खोल दिया, उस स्क्रिप्ट को हम फ्राइडे तक पकड़ के रखना है। और जो जितना जल्दी टारगेट आता है ना वो कम टारगेट देता है, कम बेनिफिट देता है। इस तरह से रिट्रेस हो के रुक रुक के जो आराम से बढ़ता है ना, ये नौकरी जो है ये दो जर्नी देगा। आईसीआरसी मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होके 100% आएगा, फिर एटीआर जर्नी कंप्लीट करके या तो फिर से रिट्रेस होके फिर सेकंड जर्नी देगा। आईसीएफसी खुल के रिट्रेस होके जो आराम से बढ़ता है ना वो 3 जर्नी देता है, एक 23.6 की, फिर रिट्रेस होके 100% की, फिर एटीआर जर्नी कंप्लीट करके रिट्रेस होके फिर एटीआर जर्नी एक्सटेंड करने की, 3 जर्नी देता है। फिर वो जो फटाफट बाकी की जो 2 जर्नी है वो पिक होती है। फर्स्ट जर्नी जो है वो जितना धीरे चले, जितना स्लो चले उतना ज्यादा अच्छा है। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम 3 participants queries, right? Love you all, respect you all, thank you all, trust you all, bye bye.